Good morning, students. Hope you all are fine. Good morning. Students, today, wait. Yes. Today we will do the revision of chapter number 9 and chapter number 13. Fine. So, first is the definition of data. Data. A collection of numbers collected to give some information. So, whenever you will collect some information in terms of numbers, in terms of alphabet, anything, that collection of any number is known as data. So data is a collection of numbers to give some meaningful information. अगर हमें कोई meaningful information चाहिए, उसके लिए जो हम collection करते हैं, that is known as data. This is first thing. Now let us suppose मैंने ये information collect की है 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 8, 6, 2, 2, 1, 6. These are the marks obtained by students out of 10. This is the information. Marks obtained by students out of 10. Then this each number, this is 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. These are called as, each number is known as, write down in the chat box. I am waiting for your responses. This is data, collection of numbers is known as data. Then this number 5, what is the name of this 5? What is the name of this 6? What is the name of this 7? Very good, Jasween. No, Savya, this is not the representation थोड़ी ना ये. Representation तब होगा जब मैं आपको बार ग्राफ बनाने को बोलूंगी. This each is termed as observation. Very good, Jasween. अगर मैं पूछूं what is this 5? 5 is an observation. What is 6? 6 is an observation. ये second student का marks है 6. So this is observation. So each number, हर एक number को हम क्या बोलते हैं? Observation. Observation. और टर्म भी बोलते हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज कलेक्शन, मीन्स डेटा. Each number is known as observation. And next, if I am talking about draw tally marks, माई क्वेश्चन इज, बेटा मैंने कॉपीज चेक की, बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी. द क्वेश्चन इज टू ड्रॉ टैली मार्क्स. ड्रॉ टैली मार्क्स. देन फर्स्ट यू विल राइट, फर्स्ट स्टेप, यू विल राइट marks. In the second step, you will write tally marks, very important. And in the third step, you will write number of students. Number of students. Like this. Don't miss tally marks. कुछ बच्चों ने tally marks मिस कर दिया, कुछ बच्चों ने ये लास्ट वाला कॉलम नहीं लिखा. If the question is based on to represent, to show the information with the help of tally marks, then these 3 columns are compulsory.
Marks, first of all, start with 0. Let's start with 0. Now, check the counting of 0. Only 1. Only 1. So, you will write here 1, then 1. Now, next number is 1. What is the counting of 1? Check the counting of 1. 1, 2. So, here you will write 2, 1, 2 and 2 here. Now, check the counting of 3. Check 1. So, 1. Next, check the counting of 4 like this. 5. Then check the counting of 4, then 5, then 6, then 7. The main point is all the 3 columns are compulsory and always try to write in a sequence. ऐसा नहीं है पहले 0 लिख दिया, फाइन, फिर कोई और नंबर लिखा, देन पहले 0 फिर 1, उसके बाद में जैसे मैंने 3 लिखा है, दिस इज इनकरेक्ट. उसके बाद आप 2 लिखोगे. 2, check the counting of 2. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Here you will write 3. Then the counting of 3 is 1. Like this. Write in a sequence. 0, 1, 2, 3. Then in second column you have to write tally marks. Then in last number. Now I am going to explain very important term जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी. ये देखो बेटा, ये मैंने 1 को लिखा 2. इट मीन्स 1 खुद को रिपीट कर रहा है. रिपीटेशन देखो, 1 की रिपीटेशन हो रही है. 1, 2 2 times. So this repetition of any number again and again is known as frequency. This is known as frequency. What is frequency? Repetition of any number again and again. अगर मैं 6 की बात करूं, so write down in the chat box what is the frequency of 6. Tell me what is the frequency of 6. Very good, Gaurish and Chehek. Yes, 3. Look, this is 1, this is 2 and this is 3. Repetition of 6 3 times. इट मीन्स यहाँ पे जो आप ये लिखते हो 6 की रिपीटेशन कितने टाइम्स हुई 3, तो दिस कॉलम, इस कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज वेरी मच कंपल्सरी. सो रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर अगेन एंड अगेन इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर. फाइन. वन मोर थिंग, बेटा अगर मैं बोलूं राइट 6 इन टर्म्स ऑफ टेली मार्क्स, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5 और चलो जी यहाँ पे ये लिख दिया 6. ऑलवेज गिव सम गैप. जब आपने 6th लाइन को स्टार्ट करना है, ऑलवेज गिव सम गैप. नहीं तो क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 6, और जब वो इसको कट करते हैं साथ में ये भी कट हो रहा है. सो अवॉइड राइटिंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, then like this. This is 5th, and when you will write 6th, give some gap like this. इसके साथ में मत लिखो. और कुछ बच्चे कटिंग ही पता नहीं इसकी कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे किया, चलो ये व्हाट इज दिस. बेटा सिस्टमेटिकली चलो, कोई सिस्टम है इसको लिखने का, आपका कोई है ही नहीं. कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे किया, चलो बीच में से ऐसे कर दिया, व्हाट इज दिस. ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. करेक्ट फॉर्म इज दिस. पहले 1, 2, 3, 4 neatly like this. neatly करो. Then whenever you will write 6th या 7th like this with some gap.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपीज में आपने ऐसे काम किया हुआ है जैसे बस कॉपी चेक करवानी है, ऐसे मार्क, कॉपी तो चेक हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। नाउ द नेक्स्ट इज, next, my next question is, draw a rough diagram of a rectangle and draw lines of symmetry. This is very important point. Now observe. अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, रफ डायग्राम, चलो जी ऐसे ये किया, ये बना दिया। इज दिस करेक्ट? कॉपीज मेरे पास आपने भेजी, ऊपर लिखा हुआ है रफ डायग्राम। रफ डायग्राम का क्या मीनिंग है भी, ये बना दो, दिस इज रफ डायग्राम और दिस इज सिमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? गौरिश बेटा आप तो बोल रहे हो नो, सही किया आपने। मैं 80% स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे कॉपीज आई हैं। ये सिमेट्री है, कॉन्सेप्ट चल रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री। द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री इज डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री? डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो रही है। डिवीजन इनटू रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं है भी ऐसे ही बनाया और बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, चलो जी हमारा काम खत्म। 0 मार्क्स मिलेगा आपको इसका। द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री इज डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप उसके इक्वल पार्ट्स शो ही नहीं करोगे तो आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ रेक्टेंगल। अच्छा, कुछ बच्चों ने स्केल से भी किया, स्केल से भी किया कुछ ने, पर स्केल से करने के बाद ये किया। लो ऑब्जर्व करना अच्छे से, क्योंकि आपकी कॉपी थी बेटा ऐसे, चलो लाइक दिस, ये किया, ये दिस इज सिमेट्री। देखना जरा, डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स हो रहा है इसका, दिस इज सिमेट्री। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, दिस इज सिमेट्री। आप डेफिनेशन तो चेक करो, डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसके इक्वल पार्ट्स हो ही नहीं रहे तो ये सिमेट्री कहां से हो गई? ये आपका पोर्शन बड़ा है, ये आपका पोर्शन स्मॉल है। मैंने वीडियो में इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, बट कोई देखेगा तभी पता लगेगा ना, वीडियो कभी देखेंगे तभी पता लगेगा भाई कैसे करनी है डिवीजन। मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मर्जी से एक फिगर बनाओ, अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो योर विश, विद एनी लेंथ, कोई कंपल्शन नहीं है। फाइन, डिवीजन इनटू इक्वल पार्ट्स मीन इसको मेजर करो, फिर इसको मेजर करो ये कितना आ रहा है। ये जैसे मेरे स्केल पे ये 34 आ रहा है, 34, तो 34 का हाफ कितना होगा? 34 डिवाइडेड बाय 2, 17। तो सबसे पहले मिड पॉइंट को मार्क करो 17 पे। देन सिमिलरली दिस साइड, जैसे मेरे स्केल पे ये 12 आ रहा है, तो इसका 12 का हाफ क्या होगा? 6। तो पहले मैं इसको 6 पे मार्क करूंगी यहाँ पे। बेटा उसको डिवाइड तो करो इक्वल पार्ट्स में, तभी करोगे आप। नाउ वी विल ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक like this, and these arrows are compulsory, these two arrows, then like this,
So this is the concept of symmetry. Division into equal parts. अब देखो, अगर ये मेरे स्केल पे 34 था तो मैंने इसके मिड पॉइंट को सबसे पहले मार्क किया. द मिड पॉइंट मीन्स डिवीजन बाय 2, हाफ उसका. तो द मिड पॉइंट ऑफ 34 इज 17. पहले मैंने 17 को मार्क किया. देन ये मेरा 12 था. 12 को मैंने पहले हाफ को मार्क किया 6 पे. Then you will draw the lines of symmetry. Like this you will show the lines of symmetry. ये नहीं है भी रफ डायग्राम का मीनिंग है भी हाथ से रफ डायग्राम बना दो. Apply the definition of symmetry. Division into two equal parts. Now next is, इस क्वेश्चन में भी 80% स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है. ये जो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ. An equilateral triangle. An equilateral triangle. Equilateral means all the three sides are equal. So draw a rough diagram with all the three sides equal. Fine, like this. अब देखो, नाउ लिसन टू मी सक्षम एंड समर्थ. यस, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब स्टूडेंट्स ने इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे बनाई हुई थी? 80% स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ. लुक लाइक दिस. ये लाइक दिस. ये आप मुझे बताना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी. So this is a line of symmetry. Write down in the chat box. Then how? आपने तो बनाई हुई है, सभी ने ऐसे बनाया हुआ है. कितनों ने? 80% स्टूडेंट्स ने like this. चलो जी, हमने तो बनाना है, बना दो जो मर्जी. ऐसे ये बन गया. This is symmetry. ये आप इसको ऑब्जर्व करो. इसको, ये आपका पोर्शन कितना स्मॉल है, ये आपका पोर्शन कितना बिग है. वन पार्ट इज टू स्मॉल एंड वन पार्ट इज टू बिग. तो ये सिमेट्री कहां से हुई? सिमेट्री मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अगेन, अगर आपने सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मार्क द मिड पॉइंट. पहले इसको मेजर करो, ये कितना है. जैसे मेरे स्केल पे ये 22 है. अगर मैं अपने स्केल की बात करूं तो मेरे स्केल पे ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज 22 इन लेंथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 11. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मार्क 11 हियर. मार्क. Now from this draw a line of symmetry. तब आपको मिलेंगे division into two equal parts. Now check. Upper part is same as lower part. Like this you will solve the sum. And one more thing, ये जो middle में सारी lines है बेटा आपकी, ये वाली must meet at a common point. This आपकी कैसे होती है लाइंस? ऐसे, ये और ये इधर से लाइक दिस. ये भी बहुत स्टूडेंट्स ने की है. ये कहां से सिमेट्री है? अगर आपकी यहाँ पे मीटिंग ही नहीं हो रही कॉमन पॉइंट पे, तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट तो समझो. सिमेट्री मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और मैंने कितनी बार आपको बोला, in alphabet symmetry write y like this, like this.
अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और यहां लिख रहे हैं वन लाइन ऑफ सिमिट्री, वन लाइन ऑफ सिमिट्री। टेल मी कौन सी सिमिट्री है आपको यहाँ पे दिख रही, मुझे तो कोई नहीं दिख रही यहाँ पे सिमिट्री। अगर मैं यहां से y में से लाइन ड्रॉ करूं, लुक हियर, जैसे आपने y बनाया हुआ है ऐसे, लाइक दिस, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, लुक, नाउ टेल मी इज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल? और कितनों ने लिखा हुआ है दिस इज सिमेट्रिकल? ये कहां से सिमेट्री है इसकी? बेटा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कर रहे हो, टाइम थोड़े ना पास करना है सिमेट्री के चैप्टर को करके। तो सिमेट्री चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले आप अपनी डेफिनेशन को अप्लाई कर लो, डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इस लेफ्ट हैंड पार्ट इज लाइक दिस एंड राइट हैंड पार्ट इज लाइक दिस, तो सिमेट्री कहां से है ही नहीं। यस हरमीत? यस मैम। मैम जो आपने मैम पिछले समय में ड्रॉ रफ डायग्राम और रेक्टेंगल, मैम जो आपने लेंथ मैम नाप के मैम डिवाइड किया था मैम, वो कंपलसरी है? तो वैसी सिमेट्री कहां से आएगी, आप कैसे करोगे सिमेट्री, आप मुझे बताओ। आप उसको टू पार्ट्स इमेजिनेशन से कर सकते हो तो यू आर इंटेलिजेंट, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ हो कि आप कोई बड़ी सी लाइन ड्रॉ करके उसको इमेजिनेशन से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी होगी, कोई कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि मैं एक से इधर लाइन होगी, आई विल नॉट गिव मार्क्स, फाइन, क्योंकि सिमेट्री की डेफिनेशन ही नहीं आपने अप्लाई की। अगर मैं यहाँ पे 23 सेंटीमीटर की लाइन बना दूं, 23 सेंटीमीटर की, तो हरमीत यू टेल मी, आप इमेजिनेशन से उसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर लोगे? टेल मी। नो मैम। तो फिर अगर मैं 23 की सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन बनाऊं, तो मुझे तो नहीं लगता हम इमेजिनेशन से 23 का हाफ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाफ आएगा 11.2, है ना, 11. नाउ डिवाइड 23 by 2, 11.5, यस। तो 11.5 आप इमेजिनेशन से मार्क कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता कोई नो भी मैम। मार्क कर पाएगा इमेजिनेशन से, स्केल ही चाहिए होगा उसके लिए। तो दिस इज कंपल्सरी सिमेट्री रफ डायग्राम, मैं फिर बोल रही हूँ, डजंट मीन कि रफ डायग्राम का मतलब है वैसे जो मर्जी मन में आ रहा है बना के छोड़ दो। रफ डायग्राम मीन्स कंपास नहीं यूज करनी हमने, स्केल तो यूज करना ही करना है। ये होता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो फिर हम उसको रफ डायग्राम नहीं बोलेंगे। सो रफ डायग्राम मीन्स विदाउट कंपास बट स्केल इज कंपल्सरी, फाइन। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, नाउ द नेक्स्ट इज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is information given to you, number of persons, number of bicycles, name of person, number रहने दो, name of person, name of person, number of bicycles sold. Okay, so first Ram sold 5,000 bicycles, Shyam sold 1,000 bicycles, Rohit sold 4,500 bicycles, and Rachit sold 3,000 bicycles. This is the question, and question is represent this information using bar graph. Bar graph.
Now students, write down in the chat box, what is the first step if the question is based on represent this information using bar graph? What is your first step? Devang, scale is your first step. Hargunpreet Singh, unmute yourself. Very good, Harmanpreet Singh. Hargunpreet Singh, unmute yourself. Harmanpreet. Yes, ma'am. Harmanpreet, what is the first step? Ma'am, first we will draw x and y axis, one horizontal and one vertical line. Yes. With arrows. Yes. Students, इसको lines नहीं बोलते. कितने बच्चों ने यहाँ पे मुझे रिप्लाई में लिखा है? First of all, we will draw two lines. These are not lines, these are axes. हरमान ने बिल्कुल सही बोला है, 100% करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ एक्सिस. एक्सिस बोलते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द नेम ऑफ दिस इज एक्स एक्सिस. Arrow is very much compulsory and you will write here capital X. Then vertical axis. Vertical axis, what is the name of vertical axis? The name of vertical axis is y-axis. And Harman, what about this? Ma'am, this is origin. Ma'am, we will write O. Yes, this is not 0, this is O, origin, and the value of this origin is equal to 0. 0. हाँ, ये 0 नहीं है, ये origin है. O origin. Origin. Origin means जहां से कुछ स्टार्ट होता है. यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इट मीन्स दिस इज ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस ओरिजिन इज इक्वल टू 0. हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? 0. आफ्टर दैट ये बेटा कोई कंपल्सरी नहीं है कि स्केल इज गिवन टू यू. बुक में कुछ क्वेश्चंस में स्केल गिवन है, कुछ क्वेश्चंस में स्केल गिवन नहीं है. सिमिलरली इन एग्जाम दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपको स्केल गिवन होगा. इफ द स्केल इज नॉट गिवन देन यू विल सेलेक्ट स्केल बाय योरसेल्फ. हरमान, आपको बेटा क्या लगता है इसमें कौन सा स्केल सूटेबल रहेगा? Ma'am, I think we can use 1 unit is equal to 5,000. 5,000? Ma'am, 500. Ma'am, 100. 500. 500 क्योंकि देखो आपके पास 1000 भी है एंड ये 4500 भी है, 300 भी है. So always try to select the suitable scale. So 1 unit, then write down unit. 1 unit is equal to 500 bicycles. Bicycles. Then here write name and here you will write Number of bicycles. Bicycles. This is very much compulsory. This labeling is very much compulsory. This is origin, x-axis, y-axis, unit. 1 unit means 10 lines, 1 complete box. So here you will write 500 equal gap. Then after 500 you will write here 1000. ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे 500 लिख के आगे 2000 लिख दो. No, with equal gap. अगर आपने ये origin 0 के बाद में 500 लिया है, it means the gap of 500. So add 500. The next is 1500. I'm writing 1500. Yes. Next is बेटा इधर नहीं लिखना, 2000. 2000. लेफ्ट साइड पे लिखना है आपने. Now this is 2000. Then 2500. 2500. Yes. And in bar graph
This is always give gap of one box. This is very much compulsory. ऐसे नहीं आपने ड्रॉ करने like this in touch. ये wrong है. ये कोई और ग्राफ होता है. दिस इज हिस्टोग्राम. ये आप 8th क्लास में जाके पढ़ोगे. जो इन टच चलते हैं ना, द नेम ऑफ दिस इज हिस्टोग्राम. तो आपने इसको टच नहीं कराना क्योंकि हमने बार ग्राफ बनाना है. द प्रॉपर्टी ऑफ बार ग्राफ इज ऑलवेज विद सुटेबल गैप. और मैंने आपको बोला था हमेशा माइंड में रखो, एक बॉक्स का ही गैप दो, कभी मिस्टेक नहीं होगी. ऑलवेज गिव द गैप ऑफ वन कंप्लीट बॉक्स. So the RAM is 5000. तो इसको आप ऊपर 5000 तक लेके जाओगे. Fine, like this. 5000 यहाँ ऊपर जाते हैं. Fine. Then name of the person, write RAM. और ये कंपल्शन नहीं है, अभी इन बिटवीन ही लिखना है, चाहे आप इधर लिखिए. Your wish. Either write inside or here outside. Okay. Now the next is Sham. Then gap of one box. Sham 1000. So here 1000 like this. So this is very much compulsory. First of all, check that which information is given to you. Select the scale according to the information given. अगर आपके पास ये होता, हरमन नेक्स्ट इज नॉट फॉर यू बेटा. वेरी गुड. नाउ दिस इज 20, 50, 40, 45. नाउ टेल मी. नाउ इन दिस इंफॉर्मेशन you will select which kind of scale. Yes, students, write down. Number of, according to Goresh, 1 unit is equal to 5 bicycles. Yes, very good. This is either 10 or 5, your wish. 5 is better because 45 आ रहा है ना, तो आपको मार्क करना easy रहेगा. Yes. So in this information, we will select the scale 1 unit is equal to 5 bicycles. Yes. Now next is, if my question is like this, 20,000, 50,000, 40,000 and 45,000. Now my information is like this. What about this? If Ram sold 20,000 bicycles, if my question is like this. Very good. Yes. Yes, Drishti, well done. Yes, 5,000. Savya, 1,000 is also correct. Your wish. Fine. So either take 1 unit is equal to 10,000, 1,000, sorry, or 1 unit is equal to 5,000. 1 unit is equal to 10,000 or 1 unit is equal to 5,000. Your wish. और ये सेलेक्ट करो, बेटर है क्योंकि 45,000 को मार्क करना इजी हो जाएगा. अगर आप 5,000 सेलेक्ट करते हो तो इजी फॉर यू टू मार्क 45,000. 5,000 आएगा. 5,000 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 10,000. देन 10,000 के बाद क्या आएगा? 15,000. देन 20,000 and so on. Yes. Yes, you can also take 10,000. Yes. Yes, Drishti. Yes, मैम. मैम जो आपने गूगल फॉर्म के थ्रू प्रैक्टिस असाइनमेंट भेजी थी, उसका जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसका 17 आंसर आएगा. हाँ जी. ओके मैम. मैम और जो एक्सरसाइज 9.2 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट में मैम स्केल गिवन है मैम. तो आपने 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड करवाया था 50-60 में. ये कंपल्सरी है?
हाँ बेटा वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये है, ये पूरा 100 है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि अगर ये 100 है तो ये कितने हैं। दिस इज कंपल्सरी, क्योंकि आपके सारे टर्म्स 100 में नहीं है ना, आपके मेरे ख्याल से वहां 472 भी आ रहा है समथिंग, है ना। तो Yes, आपको इसकी ma'am. डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी ना, फिर इसकी ब्रेक करके इसको शो करना वेरी मच कंपल्सरी। यस, आप इसको डायरेक्ट 100 लिख के अपना ग्राफ नहीं बनाओगे, इसकी फुल डिस्क्रिप्शन दोगे भी अगर ये 100 है तो इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कितने होंगे, और यू कैन सिलेक्ट द पार्ट्स बाय योरसेल्फ। जरूरी नहीं है अगर मैंने इसको 50 लिया था, इसको 50 लिया था मैंने, तो आपने भी इसको ही 50 लेना है, आप चाहे इसको 50 ले लो, योर विश, ओके, बट एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच कंपल्सरी। मैम फिर बी पार्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी? आएगी, बी पार्ट में भी आएगी। बी पार्ट में अगर 50 है, अगर ये सिंबल आपका 50 था, तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है भी मैं इसको क्या ले रही हूँ, इसको क्या मानूंगी, इसको क्या मानूंगी। फाइन। ओके मैम। इससे ना Oh, मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि आप सारी एक्सप्लेनेशन दे देते हो, तो उससे हमें पता लग जाता है भी बच्चे को नॉलेज है 100%। फाइन। ओके मैम, थैंक यू मैम। Now I am repeating one more time. On 4th December, I will send Google Form quiz, and this is final for internal assessment. Fine. Very much compulsory to complete this. Final and your marks to be added in internal assessment. बेटा जो मैंने सैटरडे को आपको सेंड किया था वो प्रैक्टिस के लिए था, भी आपको पता लग जाए। अब ये आपका फाइनल है, ये आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, इसके 10 क्वेश्चंस, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना, सोच के कॉपी पे सोल्यूशन करके देन मार्क। ये नहीं है भी खोला उसे जल्दी जल्दी मार्क कर दिया, नो, आराम से करना, अपने अच्छे से सोल्यूशन करके, क्योंकि जैसे करोगे उतने मार्क्स लगेंगे। 10 करोगे 10 मार्क्स लगेंगे, 9 करेक्ट होंगे 9 मार्क्स लगेंगे, 2 करेक्ट होंगे 2 मार्क्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगेंगे आपके। फाइन। Now come to the next. My next question is, name the alphabet. Name the alphabet with vertical lines of symmetry. Yes. This question is for Bishop. Bishop, beta unmute yourself. Yes, ma'am. Beta name the alphabet with vertical lines of symmetry. Are you hearing me? Yes, ma'am. बेटा बोलो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अल्फाबेट, कौन सी अल्फाबेट है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैम ए। यस, ए। राइट नीटली, और इसमें से ऐसे लाइन भी आपने ड्रॉ करनी है। फाइन। ए, देन नेक्स्ट ड्रॉ लाइन ऑल्सो। ये नहीं है ए लिख दिया तो चलो जी फिनिश, ए देन ड्रॉ लाइन ऑल्सो। फाइन। देन नेक्स्ट इज एच। वेरी गुड, एच, दिस इज एच।